third unit 4 exercise 4.8. It's a story problems है story problems, यानी पहले आपको problems पूरा अच्छे से read करना है, उसका explanation उसको समझना है और फिर आपको देखना है कि whether it is addition और subtraction. मैंने आप लोग को दोनों करवाया है, addition sum और subtraction दोनों मैंने करवाया है, मगर हम यहाँ पे एक एक प्रॉब्लम्स करेंगे on page number 1010. Okay, so you can see page number 1010. 110, right? So let's start with the first one, which is A. There was 452 leaves. I'll write the problem also for you. I'll be doing the plus minus के मैं थोड़े sums problems आपको करके समझाऊंगी, और अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल सॉल्व योर क्वेरीज. ओके स्टूडेंट्स, ओके. So let's start with the first one. A. There were. You don't have to write anything. You have to just pay attention. आप लोग को सिर्फ ध्यान रखना है कि मैं किस तरह से कर रही हूँ. 452 leaves on the ground. पूरा प्रॉब्लम स्टोरीज प्रॉब्लम्स मैं लिख के फिर आपको समझाऊंगी. ओके. 452 leaves on the ground. On the ground. Okay. Then goes for 318 were 318 leaves were dry. Were dry, right? How many leaves? How many leaves were not dry? Were not dry. Okay, right? So let's start. You have to, as I have taught you, okay, you have to give this is a figure of 100 tens and ones. So first thing we will do is we will do the column of 100 tens and ones, right? ये 100 tens and ones का कॉलम हो गया, और हम यहाँ पे स्पेस भी रखेंगे कैरी करने के लिए. फिगर्स बाय, अगर फिगर्स बड़े हो तो कैरी करने के लिए हम जगह भी छोड़ेंगे, और फिर हम नंबर लिखेंगे which is 452 and 318, right, leaves. Now I make you first understand the problem. Okay, there were 452 leaves on the ground. कितने leaves जमीन पे पड़े हुए थे? 452, right? और वो ड्राई हो गए थे, इसलिए वो ग्राउंड पे गिर गए थे. और 318 leaves were dry. कितने पत्ते? leaves यानी आप लोगों को पता है पत्ते, जो झाड़ पे से ड्राई हो जाते हैं तो गिर जाते हैं, और 318 were dry. ये ग्राउंड पे थे ही और ये हुए, तो how many leaves were not dry? तो आपके ये जो थे उसमें से ये हम माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा. So here the sign will come minus. You can see as I have told you that you have to start do the sum from ones place, right? So it will start from ones place. तो 2 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 बड़ा है, तो 2 में से 8 नहीं जाएगा. So we will cut here and show you with the pen so that it makes you understand. 5 को कट किया, यहाँ पे 4 डाला, और यहाँ पे 1 कैरी हो गया, जो हो गया 112, right? 12 minus 8, right? 9. If you doesn't know the finger, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, यानी 8 है तो 8 के बाद का नंबर कौन सा होगा? 9, 10, 11, 12. You have to keep in mind this figure. 12. तो कितना बचा? 4. Got it? Now 4 minus 1. You can do very easily. 4 fingers में से 1 निकाल डालो तो कितना रहा? 3. 4 minus 3. Right? तो 3 निकाल डाला, कितना रहा? 1. So this is the answer. So the answer will be 134 leaves were
were not dry, were not dry. Understood? सब्ट्रैक्शन वाला सम था। अब हम थोड़ा दूसरा करेंगे जो होगा प्लस का। मैं दोनों के सम्स प्रॉब्लम्स दो तीन प्रॉब्लम्स आप लोग को करके एक्सरसाइज 4.8 पूरा समझाऊंगी। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे कॉल करना। ओके स्टूडेंट्स? Now we are doing the second sum. First we will write the problem, which is Sneha sold मैं आपको पूरा प्रॉब्लम पहले समझाऊंगी और आपको भी उसी तरह करना है, आपको भी पूरा पहले समझना है। स्नेहा सोल्ड 256 flowers on Sunday. Flowers on Sunday. Right? She sold 175 flowers on Monday. MONDAY। आप लोग को रीडिंग करना बहुत अच्छे से आना चाहिए ताकि आप प्रॉब्लम रीड करके समझ सको। How many flowers did she sell altogether? Right? So what is the problem? First I'll make you understand the problem, which is we have to read the problem and we have to understand it, right? तो स्नेहा एक लड़की का नाम है। स्नेहा ने 256 फ्लावर्स उसने मंडे को सेल किए, मींस उसने बेचे। उसकी फ्लावर की शॉप थी, उसमें उसने 256 फ्लावर्स उसने बेचे संडे को। कौन से दिन को? संडे को। ये बातें आपको माइनर अच्छे से ध्यान में रखनी है। Then she sold 175 flowers on Monday. फिर उसने दूसरे दिन, संडे के बाद मंडे आता है, मंडे उसने 175 flowers सोल्ड किए। Now how many flowers did she sell all together? You can understand this all together. सब दोनों दिनों में उसका टोटल कितना था? Okay, so now let's start. As I told you, we will do it's a 100 column, so H for 100, T for tens, and O for ones. We will make the columns, and as I told you, we will keep the space for carrying the digit, right? फिर हम सम लिखेंगे। संडे के फ्लावर्स उसने कितने सोल्ड किए? 256, right? On Monday, how many she sold? 175, and all together हमें फाइंड करना है, तो ये सम है प्लस। अगर उसने रिमेनिंग बोला होता, हाउ मेनी आर लेफ्ट होता तो माइनस होता। ऑल टुगेदर है इसलिए वो प्लस के साइन में जाएगा। और बच्चों आप लोग को ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि अगर आप प्लस की साइन नहीं रखोगे, माइनस प्लस, तो ये अभी तो ठीक आप लोग थोड़े छोटे हो, आगे के स्टैंडर्ड्स में नहीं चलेगा। ये साइन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग अभी से ही आदत डाल देना। ओके, so let's start counting, and as I told you, from where have you to count? You have to count from ones place, right? 6 plus 5, 7, 8, 9, 10, 11, right? 11 हुआ तो 11 का 1 यहाँ आया, 1 कैरी हुआ। ओके, now 1 plus 5, 2, 3, 4, 5, 6, 6 plus 7, 8, 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, right? 13 हुआ तो यहाँ 3 आएगा, 1 वापस कैरी होगा, right? 1 plus 2, 2, 3, 3 plus 1, 4. So the answer is 431. तो वो हम कैसे लिखेंगे? 431. Answer. We will write Sneha sold
431 flowers altogether. Flowers altogether. Okay, this is the answer. So now let's start with the next sum. Okay. Okay, now we will do the C sum on page number 111. उसमें C वाला हम लिखेंगे पहले पूरा जैसे मैंने आप लोगों को बताया पूरे सम प्रॉब्लम्स मैं लिखूंगी, आपको समझाऊंगी और फिर हम करेंगे. ओके. सुनीति made 2 garlands. आप लोग को पता है गार्लैंड का मतलब क्या होता है? हार, फूलों का हार, garlands, right? सुनीति made 2 garlands. One garland, फूलों का हार. One garland has 275, right? And the other 275 flowers. एक गार्लैंड में, एक हार में कितने फ्लावर्स थे? 275. And the other has, and the other garland, and the other garland has 340 flowers. 340 flowers. दूसरे हार में कितने थे? 340. तो how many? So now how many flowers do both the garland have in all, right? तो पहले हम पूरा सम समझ लेंगे. सुनीति में 2 garlands, उसने 2 फूलों के हार बनाए. One garland has 275 flowers. एक जो हार बनाया उसमें 275 flowers लगा के उसने बनाया. और दूसरा उसने जो बनाया उसमें 340 थे. तो how many flowers do the both garlands have in all? तो दोनों में कितने थे? All. पूरा जैसे मैंने आप लोगों को समझाया कि टुगेदर हो के all हो तो वो प्लस होता है, और लेफ्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस इज देयर बिटवीन, तो माइनस होगा. तो इसमें क्या होगा? हाउ मेनी फ्लावर्स डू द बोथ गार्लैंड्स हैव इन ऑल, तो प्लस होगा, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद 100, टेंस एंड वंस, राइट? हम लोग पार्ट कर देंगे और हम लोग जगह रखेंगे. ये आपके लिए होगा ही पेपर में जब भी आप करोगे तब, मगर अगर ना हो बाय मिस्टेक तो आप अपने हाथ से इस तरह से मैंने सिखाया है ऐसे आपको करना है. ओके. नाउ वी विल राइट द फर्स्ट फिगर व्हिच इज 275. द नेक्स्ट फिगर इज 340. और कौन सी साइन बोली मैंने? प्लस. अंडरस्टूड? नाउ फ्रॉम वेयर टू वी हैव टू काउंट? फ्रॉम ones place, right? So 5 plus 0, the number itself count. बराबर? 5. 7 plus 4, 8, 9, 10, 11. 1 came. 1 plus 2, 3. 3 plus 3, 4, 5, 6. Right? So what is the answer? Answer is 650. Right? So we will write the answer in the box this way. You already have the box. There the total number of flowers, total number of flowers
in both the garland, in both the garland is 615. Okay, this is the answer. Got it? मैंने आप लोग को 3 सम करवाए, A, B, C 3 करवाए। अब आगे के 3 आप अपने हाथ से करोगे। हाँ, मगर अगर कोई भी डाउट हुआ तो आप मुझे बेझिझक पूछ सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने सिखा दिया तो अब मैं नहीं बताऊंगी, नहीं। आपको डाउट है तो आप मुझे कॉल करके पूछो, वीडियो कॉल करो, कुछ भी करके आप मुझे पूछ सकते हो। सो हियर वी आर कंप्लीटिंग अवर 4th unit chapter, and now we will start for the unit 5 after next lecture. Okay students, if you have any doubt you can ask me. Have a nice day. Thank you.